Good afternoon, students. Today we will see about the therapeutic impasses that comes under your therapeutic communication unit. So, in the last classes we have seen about the what is the meaning of what is the phases of therapeutic communication. No, so what is therapeutic communication? It is the interaction between the nurse and patient or any healthcare team. Here, the nurse and patient communicate, building trust and IPR, that means interpersonal relationship, and finally makes the rapport in between that ठीक है. And why the nurse will be maintain the therapeutic relationship? For the treatment purpose, ठीक है. Okay, for treating the patient or for giving the medication, for making the patient comfort. For these all purpose, the nurse will be make therapeutic relationship or do process recording with the patient. Process recording, why I am asking? Because the another name of therapeutic communication is process recording, or we can also say that one-to-one communication. Okay, so these all are about the therapeutic communication. Let we will move towards the therapeutic impasses here. So here the therapeutic means that is related to the treatment purpose or prevention, ठीक है. But here the word is impasses, ठीक है. Word that means impasses, that means problem, ठीक है. So what is the impasses, what is the problem comes under the therapeutic communication or nurse patient relationship or process recording. Okay, so we will see about that, what is the problems are comes under the process recording or therapeutic communication. So here we will see the first paragraph. For variety of reasons therapeutic communication can be hindered, ठीक है. बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के कारण हमारा कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है या अफेक्ट होता है, ठीक है. थेरापेटिक इम्पासेस आर ब्लॉक्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. दे अराइज वैरायटी ऑफ रीजंस बट दे ऑल आर क्रिएट्स स्टॉल इन द प्रोसेस ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं थेरापेटिक कम्युनिकेशन के, बहुत सारे इम्पासेस रहते हैं जो कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं या तो फिर उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है. Impatience provokes variety of emotions in both patient and nurse regarding from anxiety and apprehension to frustration, love, intense anxiety, ठीक है. थेरापेटिक रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है. नर्स और पेशेंट के बीच में क्या होना चाहिए, इट शुड बी प्रोफेशनल नॉट पर्सनल, ठीक है. अगर पर्सनल प्रोफेशनल हुआ तो ठीक है, ठीक है. जब पर्सनल होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, जब नर्स और पेशेंट के बीच में कुछ सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं या तो फिर कुछ इमोशंस आने लग जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, लव, इंटेंस एंगर, तब ये सारे जो इमोशंस है वो क्या करते हैं, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को प्रोफेशनल ना बनाकर क्या कर देते हैं, ये पर्सनल बना देते हैं, ठीक है. दैट विल ब्रेक द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. क्लियर. क्यों ब्रेक होगा इमोशन प्रॉब्लम्स के कारण, क्योंकि अगर वहाँ पे नर्स या पेशेंट इमोशनली फील करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो जब भी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या मे भी डिफिकल्टी कहाँ पे होगी, जब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप टर्मिनेट होने वाला रहेगा, ठीक है. दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, कम्युनिकेशन ड्रॉप होगा, ठीक है. तब उस कंडीशंस पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है या तो फिर एंजाइटी, ये सब अराइज हो सकती है पेशेंट के माइंड में और नर्स के भी माइंड में, ठीक है. सो दीज ऑल आर प्रॉब्लम्स बिटवीन द नर्स पेशेंट relationship or impasses of therapeutic communication. Okay, so that is introduction of that. So we will see the four types of impasses here. First is resistance, second is the transference, थर्ड इज काउंटर ट्रांसफरेंस एंड फोर्थ इज द बाउंड्री वायलेशंस, ठीक है. शॉर्ट में अभी मैं पहले बता देती हूँ ये सब क्या होते हैं, फिर उसके बाद वन बाय वन हम लोग डील करेंगे, ठीक है. फर्स्ट इज व्हाट, रेजिस्टेंस, ठीक है. रेजिस्टेंस दैट मीन्स ये वर्ड से ही प्रूव्ड है. रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्ट करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, मना करना, ठीक है. तो यहाँ पे पेशेंट क्या कर देता है, नर्स जो भी एक्टिविटी करती है, जो भी इंटरवेंशन प्रोवाइड करना चाहती है पेशेंट को, ठीक है, उसके लिए वो क्या कर देता है, रेजिस्ट कर देता है, मना कर देता है, ठीक है. देन सेकेंड इज व्हाट, ट्रांसफरेंस, ठीक है. ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है. ट्रांसफरेंस मीन्स हियर द पेशेंट विल हैविंग दी some emotional feelings like positive or negative. It may be positive or it may be negative. Positive that means love, affection, ठीक है, and negative that means anger, aggression, anxiety, fear, that are positive and negative emotions towards the nurse, ठीक है. So transference में क्या होता है,
ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। ट्रांसफरेंस में क्या होता है, जो पेशेंट रहता है, ठीक है, उसका फीलिंग रहता है नर्स के टुवर्ड्स, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। और काउंटर ट्रांसफरेंस जस्ट अपोजिट होता है ट्रांसफरेंस का। इसमें रहता है काउंटर ट्रांसफरेंस में नर्स की फीलिंग रहती है टुवर्ड्स द पेशेंट, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव दैट मीन्स लव एंड अफेक्शन, नेगेटिव दैट मीन्स एंगर एंड एग्रेशन। क्लियर? सो रेजिस्टेंस में पेशेंट क्या करते हैं, फुल्ली मना कर देता है। ट्रांसफरेंस में पेशेंट फीलिंग्स एंड इमोशन टुवर्ड्स द नर्स। काउंटर ट्रांसफरेंस नर्स फीलिंग एंड इमोशन टुवर्ड्स द पेशेंट, ठीक है, जस्ट अपोजिट है दोनों। देन बाउंड्री वायलेशंस, ठीक है, बाउंड्री वायलेशन क्या होता है, जैसे कि रेजिस्टेंस रहता है वो फुल्ली पेशेंट के लिए रहता है ना, पेशेंट रेजिस्ट करता है, वैसे ही बाउंड्री वायलेशन क्या करती है, नर्स के लिए रहता है। नर्स क्या करती है, अपनी बाउंड्री से क्या कर देती है, अपनी लिमिटेशन से क्या कर देती है, वो आगे चले जाती है, ठीक है, ऐसे डिसीजंस ले लेती है जो उसके बियॉन्ड द लिमिटेशन है या तो फिर बियॉन्ड द प्रोफेशन है। क्लियर है? लाइक किसी पेशेंट को डिनर पे इनवाइट करना, किसी पेशेंट के साथ घूमना, किसी पेशेंट के साथ आफ्टर डिस्चार्ज बात करना, दैट इज ऑल कम्स अंडर द बाउंड्री वायलेशंस, ठीक है। सो दीज आर द इम्पासेस ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस, सेकेंड इज द ट्रांसफरेंस, थर्ड इज द काउंटर ट्रांसफरेंस एंड फोर्थ इज द बाउंड्री वायलेशंस, ठीक है। ओके, so we will see one by one. First is resistance. Resistance that means जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, in that patient will be resist the things, ठीक है, whatever nurse will be do, the patient will be resist all that intervention, ठीक है। So first we will see resistance. Resistance is the patient reluctance or avoidance of verbalizing or experiencing troubling aspects of oneself. The term was first coined by Freud, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड के थ्रू ये सबसे पहले इस वर्ड को ढूंढा गया था, ठीक है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज ऑफन कॉज्ड बाय द पेशेंट अनविलिंगनेस टू चेंज व्हेन द नीड फॉर चेंज इज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे जो भी पेशेंट का कंडीशंस रहता है उसको नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़े, नर्स पहले असेस करती है, फिर उसके बाद प्लानिंग सेट करती है, फिर इंटरवेंशन देती है। लेकिन रेजिस्टेंस फेज में क्या होता है, वॉट एवर नर्स जैसे कि प्लान करेगी और इनका इंटरवेंशन करना चाहेगी, जैसे कि पेशेंट को बोलेगी, अगर पेशेंट वायलेंट रहेगा तो उसको इंटरवेंशन में पेशेंट के लिए बोलेगी कि आप इतना गुस्सा करना बंद करिए, कम करिए, इससे आपको और आपकी फैमिली अफेक्ट हो सकती है, उनको हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ सजेशंस देना स्टार्ट करती है नर्स इंटरवेंशन फेज पे, ठीक है। और पेशेंट को क्या बोलती है, वो अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें, चेंज करें, ऐसा उनको क्या करती है, सजेशन या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। बट रेजिस्टेंस फेज में क्या करता है, पेशेंट उसको अवॉइड कर देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉज्ड बाय अनविलिंगनेस टू चेंज, ठीक है, पेशेंट अपने आप को विलिंगनेस नहीं रहता है चेंज करने के लिए, ठीक है। वो जो भी इंटरवेंशन करती है ना नर्स, उसको पेशेंट क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, रेजिस्ट कर देता है, या तो फिर उसको मानता ही नहीं है, ठीक है। जो भी रहता है सबको क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। क्लियर? Then patient usually displays resistance during the working phase of nurse patient relationship. कल ही हम लोग डिस्कस किए थे ना, ठीक है। वर्किंग फेज ऑफ रिलेशनशिप को हम लोग किससे कोरिलेट किए थे, इंटरवेंशन से, जहाँ पे नर्स पेशेंट को इम्प्लीमेंट देती है, जो भी प्लान ऑफ एक्शन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म किए रहती है ना, उसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंट फेज को हम लोग किससे रिलेट किए थे, वर्किंग फेज से, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो मेनली पेशेंट के थ्रू डिस्प्ले कब होता है, रेजिस्टेंस फेज पे। इम्प्लीमेंटेशन फेज पे या के पेशेंट क्या कर देता है, रेजिस्ट करता है चीज़ों को, जो भी नर्स बोलती है, जो भी चीज़ करने के लिए बोलती है नर्स, उसको पेशेंट क्या करता है, नहीं मानता है, उसके लिए अनविलिंग रहता है, ठीक है। बिकॉज ग्रेटर पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज, रेजिस्टेंस में भी ड्यू टू। अब रेजिस्टेंस कैसे कैसे होता है देखते हैं, क्यों होता है, ठीक है। नर्स हु हैज़ moved too quickly or too deeply into the patient feelings, ठीक है। इसमें एक वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया है, नर्स हैज़ मूव्ड टू क्विकली और टू डीपली इनटू द पेशेंट फीलिंग। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जब भी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब
नॉर्मल पेशेंट के साथ जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई अदर हॉस्पिटल है जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल ना हो, ठीक है, वहाँ हम लोग डायरेक्टली पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन साइकेट्रिक पेशेंट के साथ डील करना थोड़ा क्या रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है। उनका पहले IPR ट्रस्ट मेनली गेन करना ही पड़ता है, उनके साथ रिपोर्ट पहले गेन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें वर्ड क्या दिया है, मूव्ड टू क्विकली और टू डीपली इनटू द पेशेंट फीलिंग, ठीक है। जब भी हम लोग पेशेंट के फीलिंग्स में जल्द से जल्द घुस जाएंगे, ठीक है, सीधे, जैसे कि एग्जांपल के लिए पहले तुम लोग को बता रही हूँ, जैसे पेशेंट को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, आपको क्या हुआ था, आप ऐसे गुस्सा क्यों करते हो, आप हॉस्टाइल क्यों रहते हो, वायलेंट क्यों रहते हो, ठीक है, ऐसे हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट को तो वो और ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा, ठीक है, वो और ज़्यादा हम लोग को रेजिस्ट करेगा चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को नहीं करना है, टू डीपली टू क्विकली पेशेंट के इमोशंस पे हम लोग को नहीं जाना है। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, उनका ट्रस्ट गेन करना है, उनसे क्या करना है, IPR मेंटेन करना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हम लोग को पहले क्या करना है, मेंटेन करना है, उसके बाद ही जाके हम लोग उनके इमोशंस को क्या करेंगे, एक्सप्लोर या एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? सो द फर्स्ट जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज़ मूव टू क्विकली और टू डीपली इनटू द पेशेंट फीलिंग। हम लोग को बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पेशेंट के इमोशंस पे नहीं जाना है, ठीक है। हम लोग को पहले क्या करना है, इन डेप्थ में नहीं जाना है, पहले सुपरफिशियली पेशेंट का ट्रस्ट गेन करेंगे, उसके बाद ही इमोशंस को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड इज व्हाट, इंटेंशनल और नॉन अनइंटेंशनल कम्युनिकेशन, लैक ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है। कभी कभी हम लोग इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पेशेंट के फीलिंग्स को क्या कर देते हैं, रिस्पेक्ट को क्या कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं, वो हम लोग को पहले नहीं करना है, ठीक है। पेशेंट को कम्युनिकेट करने के लिए स्किल पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग पेशेंट से क्या करेंगे, डील करेंगे। देन नर्स हु इज़ एन इनअप्रोप्रिएट रोल मॉडल फॉर थेरेप्यूटिक बिहेवियर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को अप्रोप्रिएट होना चाहिए थेरेप्यूटिक बिहेवियर मेंटेन करने के लिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो क्या कर देता है, रेजिस्टेंस कॉज करता है पेशेंट में। देन लास्ट इज दिस सेकेंडरी गेन। सेकेंडरी गेन में बहुत सारे चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर सकती है। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है हम लोग को मेंटेन करने के लिए, फेवरेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। जब भी हम लोग पेशेंट के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, तब उस टाइम पे क्या होना चाहिए, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। लाइक उसमें नॉइज़, वॉइस, ये सब चीज़ का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कोई फैक्टर क्या हो सके, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एयर कंडीशनर, विंडो, सारा चीज़ क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। क्लियर है? ताकि कुछ फैक्टर जो है ना नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को ब्रेक डाउन ना कर सकें। देन इंटरपर्सनल एंड सिचुएशनल चेंजेस, ठीक है, ये सारा चीज़ को क्या करना चाहिए, हम लोग को मेंटेन करना है। दैट मीन्स इन शॉर्ट वी हैव टू गिव फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द पेशेंट while we are communicating with them. Okay, so these are the points for the resistance. So what is resistance? It is the अवॉइडेंस और अनविलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इज़ डन बाय द पेशेंट टुवर्ड्स द नर्स, ठीक है। पेशेंट क्या कर देता है, जो भी नर्स एक्टिविटीज़ करना चाहती है, जो भी इंटरवेंशन पेशेंट को देना चाहती है, उन सब चीज़ को क्या कर देता है, रेजिस्ट कर देता है, ठीक है। और क्यों करता है, क्योंकि नर्स बहुत ज़्यादा इमोशंस पे चले जाती है पेशेंट के, ठीक है, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं रहता है, क्वालिटी नहीं होती है, या तो फिर फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे जो फैक्टर्स रहती हैं वो सारी चीज़ रेजिस्टेंस कॉज कर देती है पेशेंट्स में। ओके, so these all are about the resistance. So here first type of therapeutic impasses is completed, that is resistance. Now we will move towards the transference. ठीक है, अब सेकेंड हम लोग देखते हैं transference. What is transference? That is the second type of therapeutic impasses. In that what happen? Sorry. Transference is an unconscious response in which the patient experiences feelings and attitudes towards the nurse that were originally associated with the other significant figures in his or her life. ठीक है, ट्रांसफरेंस में क्या होता है, जैसे कि मैं पहले ही बताई थी, ये होता है पेशेंट का फीलिंग टुवर्ड्स द नर्स, ठीक है। पेशेंट फील करता है, इमोशनली फील करता है, जैसे कि मैं बताई थी ना, कोई भी रिलेशनशिप है, नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप वो क्या होना चाहिए, प्रोफेशनली होना चाहिए। लेकिन ट्रांसफरेंस में क्या हो जाता है, ये चीज़ें पर्सनली हो जाती हैं। दैट मीन्स पेशेंट इमोशनली फील करता है नर्स के लिए, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव दैट मीन्स जैसे पहले बताई थी, लव एंड
अफेक्शन एंड नेगेटिवली दैट मीन्स एंगर, एग्रेशन, फियर टुवर्ड्स द नर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट फील करने लगता है। सो इट इज़ ट्रांसफरेंस। देखते हैं क्या होता है। ट्रांसफरेंस इज एन अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स इन विच द पेशेंट एक्सपीरियंस फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द नर्स दैट वेयर ओरिजिनली एसोसिएटेड विद अदर फीलिंग फिगर्स इन हिज हर लाइफ, ठीक है। इसमें क्या करता है, पेशेंट जो है नर्स के लिए फील करने लगता है, इमोशनल उसके में अराइज हो जाती हैं। क्या क्या हो सकते हैं ये सारे चीज़। दे मे बी ट्रिगर्ड बाय superficial similarity such as the facial features और speech और by पर्सनालिटी, स्टाइल और ट्रेट, ठीक है। क्यों पेशेंट नर्स के साथ इमोशनली अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण दोनों अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या है रीज़न, सबसे पहले क्या दिया है फर्स्ट लाइन में, कुछ सुपरफिशियल सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिसके कारण पेशेंट क्या करता है, फील करने लगता है। लाइक सच एज फेशियल फीचर्स और स्पीच, ठीक है। नर्स के फेशियल फीचर्स और स्पीच अट्रैक्ट कर जाते हैं, और पर्सनालिटी, स्टाइल और ट्रेट, ठीक है। बहुत सारे ट्रेट का सिनोनिम क्या हो सकता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो जो नर्स है उसके जो ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर है, वो अगर पेशेंट को अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए इमोशन डेवलप कर सकता है। नर्स के लिए पेशेंट क्या कर लेता है, इमोशन डेवलप कर लेता है। देन नेक्स्ट इज द These reactions are the patient attempt to reduce anxiety, ठीक है। ये क्यों करता है पेशेंट, ताकि हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद उसका जो एंजाइटी है वो थोड़ा सा क्या हो सके, मॉडिफाई हो सके, थोड़ा सा रिड्यूस हो सके, थोड़ा चेंज हो सके, क्योंकि वो अपना माइंड को डाइवर्ट कर रहा है टुवर्ड्स दी नर्स, ठीक है। हॉस्पिटल की एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए अपना माइंड कहाँ डाइवर्ट करने लग रहा है, नर्स के टुवर्ड्स। द नेक्स्ट इज दी The nurse may be viewed as an authority figure from the past, such as the parent figure or lost love object, such as the former spouse, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि थर्ड लाइन ध्यान से देखना, इसमें बोलता है कि पेशेंट जो है ना नर्स को एक रोल मॉडल की तरह लेता है, ठीक है। उसको नर्स को देख के कुछ पास्ट की चीज़ें याद आ जाती हैं, जैसे कि पास्ट सच एज दी पेरेंट फिगर। नर्स में अपने किसी पेरेंट्स को या तो फिर किसी फैमिली मेम्बर्स को देखने लग जाता है, ठीक है, पेशेंट। और क्या बोल रहा है, लॉस्ट लव ऑब्जेक्ट और सच फॉर्मर स्पाउस, ठीक है। उसके फैमिली मेम्बर्स में जैसे कि कोई उसका स्पाउस है वो मर गया होगा या डेथ हो गया होगा, उस कंडीशन पे वो उसको याद आ जाती है नर्स को देख के, ठीक है। तो उसको देख के भी वहाँ पे ट्रांसफरेंस स्टार्ट हो सकता है या तो फिर इमोशन स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज द ट्रांसफरेंस रिएक्शन are harmful to the therapeutic relationship only if they are ignored or unexplained, ठीक है। तो ट्रांसफरेंस अगर पेशेंट में बढ़ते ही गया तो ये क्या कर सकता है, आगे जाके नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकता है, या तो फिर दे में बी इग्नोर्ड और अनएक्सप्लेन्ड। अगर हम लोग ट्रांसफरेंट को इग्नोर कर दिया और नर्स अगर पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की कि रिलेशनशिप प्रोफेशनल ना पर्सनल नहीं होना चाहिए, सो ये सब चीज़ें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे, ओके। सो यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ट्रांसफरेंस जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मतलब कि नर्स पेशेंट का जो फीलिंग है नर्स के टुवर्ड्स वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफरेंस आर पर्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक इन दी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। फर्स्ट इज व्हाट, हॉस्टाइल ट्रांसफरेंस, एंड सेकेंड इज व्हाट, डिपेंडेंट रिएक्शन ट्रांसफरेंस, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट, हॉस्टाइल ट्रांसफरेंस। हॉस्टाइल ट्रांसफरेंस दैट मीन्स इट इज नेगेटिव, दैट मीन हॉस्टाइल दैट मीन्स क्या होता है, वायलेंट ना, ठीक है। सो इट इज नेगेटिव। हॉस्टाइल वायलेंट ट्रांसफरेंस दैट मीन्स द पेशेंट विल बी हैविंग नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स द नर्स, ठीक है। नेगेटिव फीलिंग दैट मीन्स पेशेंट को फियर होगा, वायलेंट फील करेगा, पेशेंट एंग्जियस रहेगा नर्स के टुवर्ड्स, हॉस्टाइल रहेगा। सो दीज ऑल आर कम्स अंडर दी हॉस्टाइल ट्रांसफरेंस, ठीक है। और सेकेंड क्या दिया हुआ है, डिपेंडेंट रिएक्शन ट्रांसफरेंस। ये हॉस्टाइल ट्रांसफरेंस का जस्ट क्या है, अपोजिट है। जिसके हॉस्टाइल ट्रांसफरेंस में पेशेंट क्या फील कर रहा था, एंगर फील कर रहा था नर्स के लिए, लेकिन डिपेंडेंट रिएक्शन ट्रांसफरेंस में क्या करता है, पेशेंट नर्स को गॉड लाइक फीचर्स समझता है, ठीक है। नर्स को क्या करता है, गॉड की तरह समझता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिस्पेक्ट, लव, इम्पैथी, सिंपैथी सब रहता है, ठीक है, नर्स के लिए। और हॉस्टाइल में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा एंगर रहता है, ठीक है।
So here hostile and dependent transference is both contradictory. First we will see the hostile transference. ठीक है, patient may express hostility by uncooperativeness, negativism and hostile silence. ठीक है, patient hostility को कैसे शो कर सकता है? uncooperativeness, patient नर्स के साथ कोऑपरेटिव नहीं रहता है. नेगेटिविज्म, नर्स जो भी बोलेगा उसको बोलेगी उसको क्या करेगा? वो नेगेटिवली अवॉइड करेगा. देन हॉस्टाइल साइलेंस, या तो फिर जो भी नर्स बोलेगी उसके लिए पेशेंट क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा. ठीक है ना, यस बोलेगा, नो बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, म्यूट रहता है. ठीक है. इफ द हॉस्टिलिटी एंड एंगर आर internalized, the resistance is expressed and depression and discouragement. ठीक है, अगर ये हॉस्टिलिटी लॉन्ग टर्म तक हुआ तो पेशेंट अगर लॉन्ग टाइम तक साइलेंट हुआ तो इट मे बी लीड टू डिप्रेशन. ठीक है. पेशेंट में टर्मिनेट द रिलेशनशिप ऑन द ग्राउंड्स दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ गेटिंग वेल. ठीक है, अब उसके बाद क्या हो सकता है कि अगर पेशेंट को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हॉस्टिलिटी या एंगरनेस फील हुआ तो उस टाइम पे वो क्या कर देगा? जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, जो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है, उसको क्या कर देगा? टर्मिनेट कर देगा या तो फिर ब्रेक कर देगा. ठीक है, जिसके कारण उसके ठीक होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. ठीक है, दिस ऑल आर अबाउट द हॉस्टाइल ट्रांसफरेंस. अब देखते हैं अपन डिपेंडेंट रिएक्शन ट्रांसफरेंस. ये हॉस्टाइल ट्रांसफरेंस का जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है. डिपेंडेंट रिएक्शन ट्रांसफरेंस में क्या होता है? जैसे कि द रिएक्शन इज characterized by patient who are submissive, subordinate and irritating and who regard nurse god-like figure. Patient continues to demand more of the nurse. ठीक है, डिपेंडेंट रिएक्शन ट्रांसफरेंस में क्या हो जाता है? पेशेंट जो रहता है फुल्ली डिपेंडेंट रहता है किस पे? नर्स पे. और उसको वो समझता है कि नर्स मेरे सपोर्ट करेगी, पैथेटिक सारी फीलिंग्स रखेंगी और नर्स को वो गॉड लाइक फिगर की तरह देखने लगता है. मतलब कि वो समझता है कि नर्स ही मेरी भगवान है, मेरी सब कुछ है, ऐसा वो सोचने लग जाता है. दैट इज़ व्हाट नर्स, पेशेंट जो रहता है नर्स के टुवर्ड्स फुल्ली क्या हो जाता है? डिपेंडेंट हो जाता है. ठीक है. सो हियर वी हैव सीन द ट्रांसफरेंस दैट मीन्स द पेशेंट फीलिंग टुवर्ड्स द नर्स, आइदर इट मे बी पॉजिटिव, आइदर इट मे बी नेगेटिव. ठीक है, अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट रिएक्शन ट्रांसफरेंस. दैट मीन्स द पेशेंट हैविंग द पॉजिटिवली फीलिंग टुवर्ड्स द नर्स. और सेकेंड इज व्हाट? हॉस्टाइल ट्रांसफरेंस. हियर द पेशेंट इज हैविंग द नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स द नर्स. नेगेटिव फीलिंग दैट मीन्स द पेशेंट विल बी हैविंग एंगर, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, fear towards the nurse. ठीक है, these all are the two types of transference, hostile transference and the dependent transference. Clear? So first we have seen resistance, then second we have seen the transference, types of transference. Next we will see the third is what? Counter transference. Okay. So third point is counter transference. In that, what is counter transference? As I told before, काउंटर ट्रांसफर दैट मीन्स जैसे कि ट्रांसफरेंस में पेशेंट का फीलिंग था ना नर्स के लिए, वैसे ही अब काउंटर ट्रांसफरेंस में ये क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट. दैट इज द नर्स फीलिंग्स एंड इमोशन टुवर्ड्स द पेशेंट, आइदर इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. ठीक है. So it is a therapeutic impasse created by the nurse specific emotional response to the qualities of the patient. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? नर्स का फीलिंग है, इमोशनल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट. पेशेंट के लिए नर्स के फीलिंग्स, इमोशन को ही अपन क्या बोलते हैं? काउंटर ट्रांसफरेंस. ठीक है. दिस इज इनएप्रोप्रिएट टू द content and context of the therapeutic nurse patient relationship. It is transference applied to the nurse. ठीक है, ये जो काउंटर ट्रांसफरेंस है और जो नर्स का फीलिंग है टुवर्ड्स द पेशेंट, दैट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर आवर द थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. जो भी हमारा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो भी मेंटेन हो रहा है प्रोफेशनली, उसके लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि नर्स शो नहीं कर सकती कुछ भी इमोशंस है उसको टुवर्ड्स द पेशेंट. ठीक है, एज अ प्रोफेशनली पेशेंट को क्या कर सकती है? ट्रीट कर सकती है. देन दिस इट इज़ ट्रांसफरेंस अप्लाइड टू द नर्स. ठीक है, ये नर्स की फीलिंग्स होती हैं टुवर्ड्स द पेशेंट. इट इज़ नेचुरल दैट द नर्स फील टुवर्ड्स द वार्म्स टुवर्ड्स और
लाइकिंग फॉर सम पेशेंट्स मोर देन अदर्स, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वार्ड में जैसे कि 5 पेशेंट एडमिट हैं, तो नर्स का किसी एक पेशेंट के लिए अफेक्शन या तो फिर इमोशन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे बाकी जो 4 पेशेंट और एडमिट है वो क्या सोचेंगे कि मुझे नर्स अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही है एज़ कम्पेयर टू दैट फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? तो ये सारे फीलिंग्स अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट में, इसलिए इमोशनल अफेक्शन ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट या इनअप्रोप्रिएट होता है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में। क्लियर? The nurse also will be genuinely angry about the action of some patient, ठीक है। अब काउंटर ट्रांसफरेंस से पॉजिटिव नहीं होता है, दैट मीन्स नर्स सिर्फ लव एंड अफेक्शन फील नहीं करती है पेशेंट के लिए, कभी कभी क्या होता है कि ये नेगेटिवली भी होता है। द नर्स ऑल्सो विल बी जेन्यूनली एंग्री, ठीक है, नेगेटिवली या एंग्री, ठीक है, जेन्यूनली एंग्री अबाउट द एक्शन ऑफ सम पेशेंट, ठीक है। कभी कभी जो पेशेंट के एक्शन रहते हैं उसके लिए नर्स जेन्यूनली क्या हो जाती है, एंग्री भी हो जाती है, ठीक है। सो द here also the nurse will be feel positively or negatively emotions, or sorry, the nurse will have the positively or negatively emotions towards the patient, okay। But in counter transference the nurse's response are not just justified or reality. There here the nurse identify the patient with the individual from their past, the personal needs interfere with their therapeutic communication, ठीक है। जैसे कि मैं पहले ट्रांसफरेंस पे भी बताई थी कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं ट्रांसफरेंस के। पेशेंट कभी कभी रोल मॉडल समझ लेता है नर्स को, ठीक है, कभी कभी वो पास से भी रिलेट कर लेते हैं, पास में कोई उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके लव्ड या फिर कोई स्पाउस वगैरह डेथ हुआ रहेगा तो उससे भी नर्स को रिलेट कर लेता है। तो वैसे ही काउंटर ट्रांसफरेंस में नर्स भी क्या करती है, पास्ट से या तो फिर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट से या तो फिर कोई फैमिली मेम्बर से या स्पाउस से, ठीक है, इससे पेशेंट को क्या कर लेता है, रिलेट कर लेता है और उसके थॉट्स से इमोशनल फीलिंग्स क्या कर लेता है, अराइज कर लेती है, ठीक है। सो कुछ टाइप्स हैं काउंटर ट्रांसफरेंस के, वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ इंटेंस लव और केयरिंग। क्या डेवलप हो जाता है पेशेंट नर्स में, इंटेंस लव और केयरिंग टुवर्ड्स द पेशेंट। रिएक्शन ऑफ इंटेंस डिस्गस्ट और हॉस्टिलिटी, दैट मीन्स एंगर और एग्रेशन से हो जाता है। देन रिएक्शन ऑफ इंटेंस एंजाइटी ऑफन इन रिस्पॉन्स टू रेजिस्टेंस बाय द पेशेंट, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी अराइज हो जाता है नर्स के माइंड में टुवर्ड्स द पेशेंट। सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ counter transference. It may be positive or it may be negative. So some examples are there, you can see later. Next we will see the boundary violations, ठीक है। First we have seen resistance, second we have seen transference, third is counter transference and last we will see about the boundary violations, ठीक है। So what is boundary violations? Here the nurse goes beyond the boundaries of therapeutic relationship and establishes a social, economic और personal relationship with a patient, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि काउंटर ट्रांसफरेंस के जैसे ही नर्स क्या रहती है, अपने बाउंड्रीज, अपने लिमिटेशंस, अपने प्रोफेशन से बियॉन्ड जाके नर्स पेशेंट के साथ क्या करती है, रिलेशनशिप मेंटेन करती है, ठीक है। बाउंड्री वायलेशंस इज इन्वॉल्व व्हेन एवर द नर्स इज डूइंग और थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग सोशल स्पेशल, डिफरेंट और अनयूजुअल फॉर अ पेशेंट, ठीक है। बाउंड्री वायलेशन कब स्टार्ट होता है, जब भी नर्स किसी पेशेंट के साथ स्पेशल, डिफरेंट और अनयूजुअल रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है। सिचुएशन वेयर पॉसिबल बाउंड्री वायलेशंस कैन हैपन, ठीक है। तो बाउंड्री वायलेशंस क्या होता है कि नर्स फीलिंग और नर्स गोज टुवर्ड्स और बियॉन्ड दी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज और प्रोफेशन, ठीक है। तो इसमें ऐसे कौन कौन से सिचुएशन है या क्या एग्जाम्पल्स हैं बाउंड्री वायलेशंस के, वो देखते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट, द पेशेंट टेक्स द नर्स टू अ लंच और डिनर, ठीक है। अगर पेशेंट नर्स को लेके गया लंच डिनर पे तो बियॉन्ड द लिमिटेशन सही है, ठीक है। देन सेकेंड इज व्हाट, द नर्स रेगुलरली रिवील पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट, ठीक है। जब भी 1-to-1 करने जा रही है नर्स पेशेंट के साथ, ठीक है, तब उस कंडीशन पे अगर नर्स अपने पर्सनल सिचुएशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल जितना भी है वो सब चीज़ को अगर पेशेंट को बता रही है, तब उस कंडीशन पे भी हमारा बाउंड्री वायलेशंस होता है या तो फिर हम बियॉन्ड द लिमिटेशंस चले जाते हैं, ठीक है। देन थर्ड इज व्हाट, द नर्स एक्सेप्ट्स फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। जब भी नर्स केयर प्रोवाइड करती है हॉस्पिटल में पेशेंट को, उसके बाद कोई कोई पेशेंट क्या करते हैं, अपना क्या बोलना चाहिए, इन रिटर्न गिफ्ट के लिए उनको क्या करते हैं, कुछ कुछ ऑफर्स, रिवॉर्ड्स या तो फिर कुछ गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं नर्स को। अगर नर्स उन गिफ्ट्स को
एक्सेप्ट कर लेती है दैट शी गोज बियॉन्ड हर लिमिटेशंस, ठीक है, वो अपने बाउंड्रीज से क्या कर देती है, बाहर चली जाती है, ठीक है। तो हमें कोई सा भी किसी भी प्रकार का गिफ्ट, मनी, प्रिविलेज, इंसेंटिव्स नहीं लेना है पेशेंट से या तो फिर उनके रिलेटिव से। क्लियर? द नेक्स्ट इज the nurse agrees to meet the patient for treatment outside the therapeutic usual environment setting without therapeutic justification, ठीक है। जब नर्स एग्री हो जाती है पेशेंट से मिलने के लिए फॉर द ट्रीटमेंट और अदर पर्पस बियॉन्ड दी यूजुअल थेरापेटिक सेटिंग। यूजुअल थेरापेटिक सेटिंग का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल, ठीक है। जब भी नर्स हॉस्पिटल के बाहर किसी पेशेंट को मिलती है, जैसे कि कोई चर्च में, कोई होटल में या फिर कहीं और, ठीक है, तो दैट इज ऑल कम्स अंडर दी बाउंड्री वायलेशंस। क्लियर? सो वी डोंट हैव टू मेंटेन द एक्स्ट्रा और इमोशनल रिलेशनशिप विद द पेशेंट, वी कैन सेट आवर लिमिटेशन और बाउंड्रीज टुवर्ड्स आवर प्रोफेशन। ओके, so these all are about the types of therapeutic impasses. First is resistance, second is transference, third is counter transference, and fourth is the boundary violations. So we will see now we will see some other types of boundary violations, ठीक है। first is what? Role boundaries. Problem with role boundaries requires insight of the nurse and the setting of फॉर्म थेरापेटिक लिमिट्स विद द पेशेंट, ठीक है। रोल बाउंड्री दैट मीन्स नर्स अपने रोल से अपने जो भी एज अ नर्स वो ट्रीट नहीं करती है पेशेंट को, अपने रोल से क्या हो जाती है, लिमिट से वो बाहर चली जाती है, ठीक है। देन टाइम बाउंड्रीज, ऑड एंड अनयूजुअल आवर्स दैट हैव नो थेरापेटिक नेसेसिटीज, ठीक है। जैसे कि जब हमको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है, एक बार केयर दे चुके हम लोग, कोई भी पर्टिकुलर प्रोसीजर है वो मेंटेन कर चुके हैं, उसके बाद पेशेंट उससे ठीक फील कर रहा है, उसके बाद बार बार पेशेंट के पास जाके सेम प्रोसीजर रिपीट करना और उस प्रोसीजर की पेशेंट को नीड भी नहीं है, बिना कोई टाइम पे चले जाना पेशेंट के साथ, ठीक है, अननेसेसरी उनसे थेरापेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करना, दैट ऑल कम अंडर द टाइम बाउंड्रीज, ठीक है। देन थर्ड इज व्हाट? प्लेस एंड स्पेस बाउंड्रीज, ठीक है। यूजुअली एंड इन एन ऑफिस और अ हॉस्पिटल यूनिट आउटसाइड दैट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग थेरापेटिक रैशनल, ठीक है। जब भी हम लोग कोई प्रोसीजर है अगर हॉस्पिटल में परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ठीक है, ठीक है, विथ हम लोग प्राइवेसी उसको मेंटेन करते हैं। अगर हम लोग उसी प्रोसीजर का आउटसाइड दी हॉस्पिटल यूनिट करें तो वो हमारे लिमिटेशंस के क्या हो जाता है, बाहर चले जाता है। हमको कोई अथॉरिटी नहीं है कि कोई भी प्राइवेसी वाले प्रोसीजर हम लोग आउटसाइड दी हॉस्पिटल यूनिट करें, दैट कम्स अंडर दी बाउंड्री वायलेंस, ठीक है। देन मनी बाउंड्रीज लाइक फीस वगैरह लेना पेशेंट से या फिर उनके अटेंडर से मनी वगैरह लेना, ठीक है। देन गिफ्ट एंड सर्विसेज बाउंड्री, गिफ्ट्स लेना पेशेंट से, ये सारी चीज़ क्या है, बाउंड्री वायलेशन है। देन क्लॉथिंग बाउंड्रीज, ड्रेस अप्रोप्रिएटली इन अ थेरापेटिक मैनर, ठीक है। क्लॉथिंग बाउंड्रीज मतलब कि अच्छे से प्रोफेशनली ड्रेस पहनना। देन लैंग्वेज बाउंड्रीज दैट मीन्स एक्सेसिव एंगर या तो फिर बैड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना पेशेंट के सामने, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, बाउंड्री वायलेशंस में। देन सेल्फ डिस्क्लोजर बाउंड्री, जैसे कि मैं पहले ही बताई थी, अपने जितने भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है पेशेंट के सामने। अगर हम लोग डिस्क्लोज कर देते हैं तो वो किस में आ जाता है, बाउंड्री वायलेशंस में। देन पोस्ट डिस्चार्ज सोशल बाउंड्रीज, ठीक है। जब तक हॉस्पिटल में है हम लोग केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। पोस्ट डिस्चार्ज सोशल बाउंड्रीज दैट मीन्स अगर पोस्ट डिस्चार्ज, अगर हॉस्पिटल से पेशेंट डिस्चार्ज हो गया है, डिस्चार्ज होने के बाद अगर हम लोग सोशली उससे रिलेशनशिप मेंटेन करके रख रहे हैं, दैट इज कम्स अंडर दी बाउंड्री वायलेशंस, ठीक है। सोशल बाउंड्री दैट मीन्स अगर हम लोग पेशेंट से बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ किस में आ जाती है, बाउंड्री वायलेशंस में। देन फिजिकल कॉन्टैक्ट बाउंड्रीज, दैट एग्जाम्पल इज दैट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो दिस ऑल कम्स अंडर दी बाउंड्री वायलेशन, दिस ऑल 10 are the example of the boundary violations. So here the therapeutic impasses is there. I will summarize it also. So what is therapeutic impasses? Here therapeutic impasses is the problems of the nurse patient relationship or problems of the therapeutic communication. In that we have seen 4 types of therapeutic impasses. First is what? Resistance. Second is what? Transference. Third is what? Counter transference. And fourth is what? Boundary violation. So what is resistance?
In that resistance, the patient will fully resist the things whatever the nurses is intervening with the patient. ठीक है, जो भी नर्स पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इवन कम्युनिकेशन भी कर रही है पेशेंट के साथ, तो उन सब चीज़ को पेशेंट क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है या तो फिर रेजिस्ट कर देता है. ठीक है. देन सेकेंड इज द ट्रांसफरेंस. व्हाट इज ट्रांसफरेंस? In that phase, the patient will having the emotional feeling towards the nurse, either it may be positive or it may be negative. Then next is one counter transfer. Types of transference. We have seen the two types of transference here. First is the hostile transference and second is the dependent reaction transference. ठीक है. hostile transference में क्या होता है, the patient will having the negative feeling towards the nurse like anger, aggression. ठीक है. and dependent reaction transference में क्या होता है, the पेशेंट विल हैविंग दी पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स द नर्स लाइक लव एंड अफेक्शन. और इसमें क्या आता है, नर्स को गॉड की तरह समझता है पेशेंट. ठीक है, इतना डिपेंडेंट रहता है पेशेंट नर्स के लिए. ठीक है. द नेक्स्ट वी हैव सीन दी काउंटर ट्रांसफर. काउंटर ट्रांसफर दैट मीन्स द नर्स विल हैविंग दी फीलिंग एंड इमोशन टुवर्ड्स द पेशेंट. वी हैव सीन types of that counter transference, love or caring, disgust or hostility, then anxiety. ठीक है. then next we have seen the boundary violation last. Here the boundary violation, that means the nurse goes beyond the limitations, beyond the boundaries or profession फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद द पेशेंट. ठीक है. इसमें क्या करती है, इंसेंटिव्स और मनी और ये सब चीज़ लेना स्टार्ट कर देती है नर्स पेशेंट के साथ, और उनसे मीटिंग भी करती है लाइक इन दी मोबाइल फ़ोन और इन दी अदर प्लेसेस लाइक होटल्स एक्सेट्रा. ठीक है. सो ये सारे चीज़ क्या हो जाते हैं, बाउंड्री वायलेशंस कहलाती हैं. ठीक है. अब इसके कुछ टाइप्स हैं लाइक रोल बाउंड्रीज है, टाइम बाउंड्रीज, space and place boundaries, money boundaries, gift and service boundaries, clothing boundaries, language boundaries, self disclosure boundaries, post discharge social boundaries and physical contact boundaries. So these all are comes under the types of boundary violations. So here my topic therapeutic impasses is completed for today, and tomorrow we will see about the Johari window. So all of you read one time Johari window. Tomorrow we will discuss about that. Okay.